हाँ, good afternoon. Assalamu alaikum, dear students. Today, once again, our topic will be about tennis. As you know that we have already started the tennis. I have told you that tennis shows us how many things? How many? Two. Which are they? वो कौन कौन है? कौन? हाँ, कौन? टाइम और स्टेटमेंट, टाइम के लिहाज से टेनिस के कितने किस्म है? कितने? कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट आई टोल्ड यू टुडे, पास्ट यस्टरडे, फ्यूचर tomorrow. Is it clear? Then I told you that according to statement, by statement I mean completeness or incompleteness of the action on the basis of the stages of action. I told you that action has how many stages? How many? That is beginning, middle and end. On the basis of this tennis, it is of how many types? How many? That is number one, indefinite. In case of indefinite, everything is unknown. In case of indefinite, everything is we didn't know where we have started the work. We didn't know where we have completed the work. For example, I eat, मैंने खाया, ये मालूम नहीं कब खाया. I play, मैंने खेला, but ये मालूम नहीं है कब. समझ रहा है? They are perfect. In case of perfect, everything is known. Beginning is known, middle is known, end is known. For example, you know that when I have entered in the classroom and you know what I am teaching, and when we will complete the class, you will know that at which time I have completed my class. Is it clear? Yes, continuous means in the middle. In case of continuous, neither beginning nor end is known. Only middle is known. For example, I told you that if principal sir will come at this time, he will see me. But he didn't know that when he had started the class, and he didn't know that when I will complete the class. Is it clear? In case of perfect continuous, beginning is known, middle is known, and is, for example, you are in the classroom. You know that when we have started the class, and you know that I am teaching at this time, but you didn't know when I will complete the class. समझ आ रहा है? हाँ. तो after that I told you that identification of tennis. For identification of tennis we need how many things? कौन? Helping verb and verb form. Helping verb, I told you that is, am, are, was, were, have, has, had, will, shall. And verb form. How many verb forms? How many? First, second, third, fourth is also called ing form. Very good. Then I told you that this chart, I told you that try to remember this. Try to. If you will remember this, you will understand 100% tennis. I told you that with all indefinitives, which form of verb is used? With all indefinitives, which form of verb is used? Which? First form. With all indefinitives, which form of verb is used? हाँ, मुझे मालूम है, कभी सेकंड भी होती है, कभी वो हमने यहाँ लिखी है, जुबान से मैंने नहीं कहा है, यहाँ लिखा है, मैंने कहा है, मगर वो एक्सेप्शन है, कभी समझ रहा है? विथ आपको पहले ये याद रखना है, पहले आपको मेरा मानना है, फिर मैं आपका मानूंगा, ठीक है? हाँ, विथ ऑल इंडेफिनिटिव्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. विथ परफेक्ट थर्ड फॉर्म. विथ परफेक्ट, विथ कंटिन्यूअस, विथ परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड सिंसेड फॉर्म. ये मैंने आपको कल ही कहा है. अब बात है, मैंने कहा है, इसलिए आपको जहां भी आपको फर्स्ट फॉर्म आप कहेंगे इंडेफिनिट है, क्या है? या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट.
अब है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म। मैंने कहा कितने जगह इस्तेमाल होता है? 2 जगह। कितने जगह? वो अभी मैं वो दिखाऊंगा। हाँ, और इसके बाद आप मैंने कहा है कि सर चलो जहां फर्स्ट फॉर्म वो इंडेफिनिट, जहां थर्ड फॉर्म वो, जहां थर्ड फॉर्म वो परफेक्ट, जहां फोर्थ फॉर्म वो कंटिन्यूअस और अब बात है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन है? वो मैंने कहा किससे मालूम होता है? हेल्पिंग वर्ब से। किसे? जहां हेल्पिंग, जहां फर्स्ट फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। जहां फर्स्ट फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, वो पास्ट इंडेफिनिट। जहां फर्स्ट फॉर्म प्लस विल शैल वो फ्यूचर इंडेफिनिट। हो समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया? अब बात है सर कल आपने कहा है कि ये सेकंड फॉर्म 2 जगह इस्तेमाल होती है। कितनी जगह? कितनी जगह? वो क्या है? हाँ, try to first of all I will come to the rules or important points. Tennis. हाँ, these are important note or important rules. That is what I want to say that मैंने आपको कहा है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म से हमें पता चलता है ये कौन सा टेंस है। किससे? हेल्पिंग वर्ब और किससे? हेल्पिंग वर्ब और। मगर अब एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है, मतलब नोट है, इंपॉर्टेंट रूल है। वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड। हेल्पिंग वर्ब, समझिए मेरी बात, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड विद कितने टेंसेस है? कितने टेंसेस है? क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किस किस टेंस के साथ? प्रेजेंट इंडेफिनिट और किस किस के? क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। मगर खाली स्किन सेंटेंसेस में इनके साथ क्या आपने समझा? रूल नंबर फर्स्ट, हेल्प सर आपने कहा है 2 चीज से हमें पता चलता है टेंस के बारे में, एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म। अब ये एक्सेप्शन है, रूल नंबर 1 है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। किन के साथ? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। मगर किन सेंटेंसेस के साथ? वो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, यहां तक समझ में आया? अब बात है सर, अब आप कह रहे हो कि 2 टेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होता है, अब कैसे डिफरेंस होगी? वो समझ आ रहा है या नहीं? नहीं आया, नहीं आया इसमें, नहीं आया इसमें। देखो मेरे कहने का मतलब है आई डू नॉट ईट फूड, वी कैन दिस इज आसान है ना? हो क्या हुआ आपको? देखो देखो कैसे कैसे पहचाना है, देखो कैसे पहचाना है, देखो देखो कुछ नहीं करना है, पहले देखना है फार्म कौन है। कौन सी फार्म है? ईट, एट, ईटन। कौन सी फार्म? आप कौन सा टेंस है? फर्स्ट फार्म वाला इंडेफिनिट। कौन कौन है? इंडेफिनिट। आप कौन सा इंडेफिनिट? इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब? है ना डू। डू और डज किसमें इस्तेमाल होता है? इसलिए ये कौन सा टेंस है? वो समझ में आ रहा है? वो समझ में आया नहीं? हाँ, आई अनदर वन, आई डिड नॉट ईट फूड, वी टेंस दिस इज कैसे? सर पहले हम देखेंगे फार्म। फार्म कौन है? फर्स्ट फॉर्म, इसलिए क्या है? इंडेफिनिट है ना? हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड किसमें इस्तेमाल होता है? पास्ट में। वो समझ आ रहा है या नहीं? समझ आया? हाँ, अब बात है सर चलो ये हमें समझ में आया। अब इसका ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव समझ आ रहा है? अब इसका पॉजिटिव और अफर्मेटिव बनाओ, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। हाँ, इसका पॉजिटिव और अफर्मेटिव। आई नॉट नहीं लिखना है, आई ईट, आई ईट फूड। ये डू क्यों नहीं लिखा? अच्छा इसका लिखो आई
इसका लिखो पॉजिटिव, आई 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 एट, हाँ एट फूड है। इसका ये हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिखा? चलो नॉट नहीं, बट ये डिड भी आपने नहीं लिखा, हेल्पिंग वर्ब नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, आई विल नॉट ईट फूड, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर। क्या? क्यों? क्योंकि सर इसमें फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इंडेफिनिट है, इसमें विल है इसलिए फ्यूचर है। इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव आई विल ईट फूड। देखो पहले हम लास्ट से ही आएंगे। इसका आपने लिखा है, यानी कि नॉट आपने क्या किया है? ये मतलब आप कट किया है, डिलीट किया है। आपने लिखा आई विल ईट, यानी कि आई भी आपने लिखा है, विल भी लिखा है, ईट भी लिखा है, फूड भी लिखा है। वो समझ आ रहा है नहीं? अब बात है, यहां आपने विल लिखा है, लिखा यहां क्या किया है? आई डिड नॉट ईट फूड, यहां आपने क्या लिखा है? आई ये डू डिड क्यों नहीं लिखा? वो समझ आ रहा है? एक सेकंड, आई डू नॉट ईट फूड, यहां क्या किया? आई एट, ये डू क्यों नहीं लिखा? हाँ यही जो रूल नंबर 1 है, यही हमें ये कह रहा है। क्या कह रहा है? हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड विद टू टेंसेस। कितने टेंसेस के साथ? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हाँ कौन कौन से टेंस है वो? और मगर खालिस कौन? ये है ना अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का है ना माने पॉजिटिव, ये उसका क्या है? नेगेटिव है ना। नेगेटिव में इस्तेमाल होगा, मार किन के साथ नहीं होगा? हाँ पॉजिटिव के साथ नहीं होगा। अगर इंटरगेटिव में भी होगा, मिसाल के लिए डू आई ईट फूड, उसमें इस्तेमाल होगा। वो समझ आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है? डिड आई ईट फूड, वहां हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। खालिस हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल नहीं होता। मगर किन अफर्मेटिव के साथ? पॉजिटिव और अफर्मेटिव किन के साथ? प्रेजेंट इंडिफिनिट और इंडेफिनिट। समझ आया? हाँ चलो सर, अब हमने यहां तक यही लिखा है, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड विद टू टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यहां तक हमने एक्सेप्ट किया है सर। अब बात है सर, अब ये है, ये क्या है? ये क्या है? सेकंड फॉर्म। ये क्या है? अगर हम यहां भी लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, अगर फिर ये और ये सेम होगा ना, वो समझ आ रहा नहीं? अगर हम यहां भी लिखे आई ईट फूड, फिर ये और ये सेम होगा ना, वो समझ आ रहा नहीं? यानी कि यहां भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मगर अब कैसे फर्क होंगे? अब इनके साथ सेकंड फॉर्म, इनके साथ किनके साथ? पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। क्या क्या है उनके साथ? समझ आया? सेकंड फॉर्म कहां इस्तेमाल होती है? कहां? पास्ट इंडेफिनिट। मैंने कितने जगह कहा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है? कितने जगह? एक जगह खत्म। हाँ यानी कि यही मैंने लिखा है, आल्सो सेकंड फॉर्म इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। समझ में अब आया? अब आपके क्वेश्चन का जवाब मिला। सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई मगर कहां? ओनली अफर्मेटिव। पास्ट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई मगर खालिस किनके साथ? बाकी के साथ। और किसी का कल ये सवाल था, वो कहां चली गई? वो शायद आज है ही नहीं। वो है आज? वो ये समझ आया नहीं? कंफ्यूजन मत हुआ? हाँ एक जगह। अब दूसरी जगह, अब है दूसरी जगह, ये कहां इस्तेमाल हो? हाँ हाँ एक सेकंड देखो, पास्ट परफेक्ट। पास्ट उसका माने क्या है? पास्ट का माने है गुजरा हुआ, परफेक्ट का माने है, परफेक्ट का माने है मुकम्मल, कंप्लीट, फिक्स्ड। जो कंप्लीट होगा वो भी गुजरा हुआ होगा ना,
मैंने कंप्लीट क्रॉस किया है, वो भी पास्ट ही होगा, समझ में आ रहा है। मिसाल मैं इस वक्त पढ़ा हूं, ये है कंटिन्यूअस, मैं पढ़ाऊंगा वो है फ्यूचर, मैंने कंप्लीट किया परफेक्ट, वो भी है ना पास्ट। और मेरी बात समझ आ रहा है। यहां अगर आप समझेंगे, यहां पास्ट परफेक्ट को डबल पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट को, यानी कि हमने पास्ट में काम की होती है। समझे मेरी बात, समझिए मेरी बात समझिए, यहां थोड़ा समझना है। पास्ट परफेक्ट का दूसरा नाम है डबल पास्ट। क्या है? सर क्या डबल पास्ट, समझ नहीं आया। इसमें क्या होता है, इसमें आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, पास्ट परफेक्ट को डबल पास्ट कहते हैं क्योंकि इसमें पास्ट में दो काम होते हैं। कितने काम? पास्ट में ही दो काम, पहले एक काम, आफ्टर दैट सेकंड। समझ आया नहीं? मैं ऐसे आपको समझाऊंगा, समझो समझो मेरी बात। व्हेन आई रीच्ड स्टेशन यस्टरडे, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, जब मैं कल कहां पहुंचा? द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई। ये कब की, मैं कब स्टेशन पहुंचा? कल, पास्ट। ट्रेन कब चली गई? कल ही। इसमें पास्ट परफेक्ट में दो काम होते हैं। कितने? दो काम। मगर पहली एक काम, उसके बाद दूसरा काम। मगर दोनों किसमें? पास्ट में, दोनों। वो समझ आ रहा है नहीं? समझ आया? समझ आया थोड़ा या नहीं? अब बात है क्या मैं पहले स्टेशन पहुंचा या पहले ट्रेन चली गई? मिसाल के लिए दोनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, पहले मैं स्टेशन पहुंचा फिर, दोनों मुमकिन है, दोनों मुमकिन है। चलो हम ये आप इस वक्त मानेंगे पहले ट्रेन चली गई, पहले वो काम, फिर मैं स्टेशन पहुंचा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये भी पॉसिबिलिटी होगी, पहले मैं स्टेशन पहुंचा उसके बाद में चला तो ट्रेन निकली, दोनों पॉसिबिलिटी वो है। समझ आ रहा है नहीं? When the doctor came, the patient had died. जब डॉक्टर पहुंचा तो पेशेंट बेचारा, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यानी कि टू एक्शन इज इन पास्ट, टू एक्शन इज इन, बट नॉट साइमल्टेनियसली, बट नॉट फर्स्ट वन देन सेकंड। यही मैंने यहां लिखा है, समझो मेरी बात समझो। पास्ट परफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डबल पास्ट, यही लिखा। हाँ, इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टू एक्शन आर परफॉर्म, टू एक्शन आर कितने? कितने? हाँ, बट नॉट साइमल्टेनियसली, मगर एक इकट्ठे, क्योंकि अगर इकट्ठे होगी वो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर इकट्ठे होगी ना वो है पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए मैंने लिखा नॉट साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट एक्शन, विद थर्ड फॉर्म, विद फर्स्ट एक्शन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। कौन सी? किसके साथ? किस एक्शन के साथ? क्या होता है इस्तेमाल? परफेक्ट में कौन से फॉर्म इस्तेमाल होती है? वेरी गुड। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? यानी कि जो हम फॉर्म यहां इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल हुई है। हाँ, ऑफ वर्ब इज यूज्ड। तैनी कहीं पे वाई ख्याल पावर पे गोद में पे ख्याल थी वही मानसु मिसाल समझ। हाँ, यूजुअल एज यूजुअल एंड विद सेकंड एक्शन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। हाँ, विद सेकंड एक्शन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज, इसने कहा पान था याद ब्याख थोन विद सेकंड एक्शन हो गया। ये दोयम एक्शन दोयम तस गन यूज, मतलब अगर गोड सिचुएशन वोतुस, अगर बोतुस गोड तस ग थर्ड फॉर्म, ये पे अगर पे ट्रेन तस ग सेकंड फॉर्म। समझ आओगा क्या? क्या विथ फर्स्ट दपू सर पास्ट परफेक्ट इज कॉल्ड डबल पास्ट बिकॉज देयर हैपन्स टू वर्क्स। With first verb third form of verb is used, with second verb second form। ये बहुत आसान है, second verb के साथ second form। हाँ हाँ वो ना तीसरा समाधान। When I reached station, समझो, when I reached station, the train had left। When I reached station,
व्हेन आई द ट्रेन हैड। अब और एक क्वेश्चन है सर, अब और एक क्वेश्चन है, आपके दिमाग में नहीं आया तो मगर मेरे दिमाग में नहीं आया। अब मुझे वहां ज्यादा नहीं जाना है, जो हुआ सो हुआ है ना। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है। अब और एक क्वेश्चन है सर, वो फार्मर्स आपने कहे हैं फर्स्ट फार्म, सेकंड फार्म, थर्ड फार्म, कुछ फार्मर्स के तो मतलब गो एंड गान ये अलग है, गो अलग है, वेट अलग है, गान अलग है। प्लेड 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 प्लेड। सर अब हमें कहाँ समझ आया ये प्लेड सेकंड वाला है या थर्ड वाला है, वो समझ आ रहा है या नहीं? मिसाल के यहाँ रीच रीचड रीचड। सर अब आप कह रहे हैं सेकंड फार्म थर्ड फार्म, वहां सेकंड फार्म यहाँ थर्ड फार्म, हमें कैसे समझ में आएगा कौन सी सेकंड है कौन सी थर्ड है? वो समझ आ रहा है या नहीं? समझ आ रहा है या नहीं? क्या है ना, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों के साथ ईडी है ना। सर ये वाला क्या है, ये द ट्रेन, एक सेकंड, व्हेन आई रीच्ड, हाँ मैं अब ऐसे लिखूंगा, और एक मैं ऐसे लिखूंगा, और एक व्हेन आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ये सेम है या डिफरेंट है? क्यों? यहां मैंने हेड यहां लिया, वहां लिया, वो समझ आ रहा है? हेड को एक्सचेंज किया, समझ आ रहा है? हेड को यहां हेड है, यहां कहां हेड है, यहां। ये मैंने क्यों बताया आपको? सेकंड फार्म, मेरी बात समझो, हमें कैसे पता चलेगा ये सेकंड फार्म है या वो समझ आ रहा है? देखो सुनो, सुनेंगे आप? सुनेंगे किन से? इन कानून से नहीं, इनके कानून से। हाँ सुनो मेरी बात। मैंने आपको जब पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने कहा हैड कहाँ इस्तेमाल होता है? हैड कहाँ इस्तेमाल होता है? पास्ट परफेक्ट में। कहाँ? समझो मेरी बात। और अभी मैंने आपको कहा है, मैंने आपको रूल यहां कहा है, मैंने कहा कि जो पास्ट इंडिफिनिट है, क्या है? वहां कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? कौन सी? सुनो, जहां हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या होगा? जहां वहां थर्ड फार्म, वहां जहां हेल्पिंग वर्ब फार्म के साथ होगा वो कंसीडर करना है कौन सी फार्म? जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा वो कौन सी फार्म? समझ में आया क्या? जहां हेल्पिंग वर्ब होगा वो थर्ड फार्म, क्योंकि परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा वो सेकंड फार्म, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहां हम कौन सी फार्म इस्तेमाल करते हैं? वो समझ। इन शॉर्ट आप याद रखो, जहां हेल्पिंग वर्ब होगा वहां इसको हम कैंसिल करना है थर्ड फार्म, जहां हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं, इसको समझ में आया? अब क्या है? व्हेन आई रीच्ड, यहां हेल्पिंग वर्ब है मत है, फिर ये कौन सी फार्म है? वो समझ में आया? हाँ, व्हेन आई हैड रीच्ड, यहां क्या है? हेल्पिंग वर्ब, वो समझ में आ रहा है? फिर कौन सी फार्म? वो समझ में आ रहा है? वो समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहां क्या है? हेल्पिंग वर्ब, इसलिए कौन सी फार्म? द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये कौन सी फार्म? वो समझ में आ रहा है? हाँ, द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, ये कौन सी फार्म? वो समझ में आया या नहीं? वो समझ में आया नहीं? हाँ, आया नहीं? अब नहीं आया? हाँ, अब बात है सर, ये सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या फर्क है? क्या फर्क है? अब आप ही बता क्या फर्क है? सर हेल्पिंग वर्ब इधर उधर है, मुझे मालूम है इधर उधर है, मगर मैं कह रहा हूं मायने में क्या फर्क है? हाँ, क्या हुआ आपको? अभी मैंने कहा ना, ना अगर वो एक मेगा शाल सर ये ठोल दिमाग से गाने तीसु तो मैंने अभी कहा ना आपको, मैंने कहा है जो ये वाला है, व्हेन आई रीच्ड,
अब यहां है ना सेकंड, मैंने किस एक्शन के साथ कहा है सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, सेकंड वर्ड के साथ, किसके साथ, यानी कि यहां इसका माने है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, इससे पहले ही ट्रेन चली गई। समझ में आया? क्योंकि वहां हम फर्स्ट के साथ कौन से फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो आपको समझ नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं है। मैंने कहा है, सुनो 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 मेरी बात, मैंने कहा जो फर्स्ट वर्ड होता है, जो उसके साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, जो सेकंड होगी उसके साथ। समझ आ रहा है? यहां इसका क्या मानी क्या है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, ये रीच्ड अब सेकंड फॉर्म है ना, है ना सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये दूसरी काम है, यानी कि द ट्रेन है लेफ्ट, यानी कि पहले ट्रेन चली गई फिर मैं स्टेशन पहुंचा। इस वाले में व्हेन आई हैड रीच्ड स्टेशन, पहले मैं ही स्टेशन पहुंचा। वो समझ में आया, वो समझ में आया, समझ में आया नहीं आया नहीं? हाँ, यही मैंने लिखा है। और मैंने यहां लिखा है इन केस ऑफ ऑल, इन केस ऑफ ऑल परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस सिंस एंड फॉर इज यूज्ड। ये मैंने आपको कहा है, हर किसी परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ क्या होता है इस्तेमाल, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कहा है सिंस का माने है बराबर कब से कहां तक। मिसाल के मेरा क्लास था 1240, आई एम टीचिंग यानी कि सिंस 1240, मिसाल के लिए इस वक्त 1 है, मैं ऐसे भी कह सकूंगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 मिनट्स। वो समझ आ रहा है? फॉर दिखा रहा है ड्यूरेशन, कितने अरसे तक, वो दिखा रहा है कहां से, सिंस। वो समझ आ रहा है? सिंस मंडे, फॉर 2 days, सिंस 2021, फॉर 1 year। वो समझ आ रहा है नहीं? हाँ, और थोड़ा है यहां, थोड़ा है, थोड़ा with present indefinite affirmative sentences SRES, SRES is used with the verb in case of third person singular he, she, it। गुब्रा, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, अगर वहां थर्ड पर्सन होगा, नाम होगा किसी का थर्ड पर्सन का, या प्रोनाउन ही, शी, इट, उस वक्त हम वर्ब के साथ SRES इस्तेमाल करते हैं। समझ आया नहीं क्या? मिसाल के लिए मेरी बात समझो, I eat food, you eat food, he eat food, he, very good, he, वो समझ में आया, she eats food, लीला, पीटर, वो समझ में आया, समझ में आया? यही है टेनिस, टेनिस खत्म। समझ में आया या नहीं? इजी था, इजी था, इजी था। हाँ, मैं को वीडियो खराब